Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss important diagram-based questions for ICSE Class 10 Biology. I am going to discuss diagrams along with their function and proper location of all the labeled parts of the diagram. Starting with the unit Human Anatomy and Physiology, our first chapter is Circulatory System. First question on your screen is, the following simplified diagram refers to the outline plan of the circulation of blood in a mammal. Study the diagram and write the number and name of the blood vessels in each one case as mentioned under. So first of all, we need to give the name of all these blood vessels. So as you can see, our first blood vessel is going from lungs to heart. So it means it is pulmonary vein. Pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to left auricle of the heart. Our second number is aorta. Aorta arises from left ventricle and carries oxygenated blood to the all parts of the body. Third is hepatic artery, which is carrying blood to the liver. Fourth is hepatic portal vein, because we know that veins starting from stomach and intestines do not directly convey the blood to the posterior vena cava. 5 number is renal artery. Renal artery, where more urea is present, more oxygen is present and less carbon dioxide is present. 6th is renal vein. Renal means everything which is connected with kidney. So renal vein, it means leaving the kidney, blood vessel leaving the kidney. It has less urea, less oxygen and more carbon dioxide. 7 is hepatic vein. Hepatic vein because it is the reunion which joins now with posterior vena cava. And 8th is posterior, or you can say inferior vena cava, which bring blood from the lower region of the body. It means lower part means limbs or abdomen or lower part. And 9 is pulmonary artery. Pulmonary artery carrying blood from heart to lungs. It means arises from right ventricle and carries deoxygenated blood to lungs for oxygenation. That is why its arrow is from heart to lungs, because in the lungs it will get purified. Now questions associated with this diagram are, several hours after a meal containing a lot of proteins, which vessel will contain the highest concentration of urea? And the correct answer is number 7. It means hepatic vein. Second, which vessel would contain the highest concentration of amino acids and glucose soon after a meal? And the correct answer is 4. Number 4. It means hepatic portal vein. Third is, which vessel begins and ends in capillary? And it is again 4, which is hepatic portal vein. Fourth, which vessel will contain the smallest number of RBCs per unit volume of the blood? And it is number 7. It means hepatic vein. Fifth part, in which blood vessel will the blood carry the most oxyhemoglobin? And our answer is 1, which means pulmonary vein, because pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to left auricle of the heart. Sixth part is, certain poisons, if absorbed through food, are detoxified in which organ? And our correct answer is liver. Coming to second diagram, which shows diagrammatic representation of blood and lymph circulation. So it means it shows the relationship between blood, tissue fluid and lymph as they circulate in their respective vessels or spaces between the cells in different organs. As we know, blood flows in blood vessels and lymph flows in other set of minute channels called lymph vessels, for example spleen or ileum. Blood in our body circulates in a closed manner, that is closed blood circulatory system, which is shown in this diagram. Here on the right hand side you can see lymph nodes. Lymph nodes under lymph vessels, the way drain lymph into lymph nodes from where fresh lymph channels arise. So this is the point which is called lymph nodes. And then lymphatic duct. Lymphatic duct, where lymph nodes pour the lymph into the major anterior vein close to their entry into the right auricle. Now coming to next diagram, different type of
Questions can be covered from this topic for the identification and function of these blood cells. So first one is red blood cell. Red blood cells, you all know, are also known as erythrocytes. It means minute biconcave disc-like structures plus concavities on either side provide a large surface area which makes them very efficient in absorbing oxygen, and their small size enables them to travel through very fine capillaries in the body. In part 2, these are white blood cells. Stained white blood cells are shown in this part 2, and these are different WBCs. We know that they are of two types, granular and non-granular. So first, granular in neutrophils. First one is neutrophils, which is granular, and function of this is to engulf bacteria, and site of production is bone marrow. It is produced only in bone marrow. You can see all these WBCs are produced in bone marrow. Only the non-granular lymphocytes are produced in bone marrow and lymph glands also. It is produced in two sites. All others are produced in only one site, which is bone marrow. So neutrophils function is engulf bacteria and site of production is bone marrow. And then eosinophils, nucleus with two lobes, large cytoplasmic granules, and their function is to engulf bacteria, secrete antitoxins, and associated with allergy also. Third is basophils. Basophils release chemicals for inflammation which dilate blood vessels. Then non-granular lymphocyte, they are the smallest of WBC, सबसे छोटे हैं, single large nucleus है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना इनका फंक्शन है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड दोनों जगह पर ये प्रोड्यूस हो सकते हैं. देन मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ऑफ WBC हैं, न्यूक्लियस लार्ज है, किडनी की शेप का है, एट द साइट ऑफ इंफेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस, और इसका फंक्शन है इंजेस्ट जर्म्स को इंजेस्ट कर लेना, और साइट ऑफ प्रोडक्शन इनकी भी बोन मैरो ही है. नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पे प्लेटलेट्स, एंड प्लेटलेट्स आर इनिशिएटर्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अब हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हम इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम और, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, ये कौन सी प्रोसेस है, आप सब इसके बारे में जानते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपेडिसिस. व्हेन एमीबॉइड WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, कैन प्रोड्यूस सीडोपोडिया and can squeeze through walls of the capillaries into the tissues. Then this process is known as diapedesis. Very simple diagram. Next diagram is associated with blood clotting. Whenever a tissue get injured or platelets get injured, they release an enzyme named thrombokinase. Now, in the presence of thrombokinase and calcium ion, prothrombin, which is initially inactive, now converts to thrombin and becomes active. In the presence of thrombin, fibrinogen, which is initially soluble in the blood, now converts itself to fibrin, which is insoluble. And this fibrin forms a network of sticky threads. In the presence of RBC, it becomes a clot. So in this way, our blood clotting process gets completed. This is the front view of the human heart to show you coronary artery. Now, what is the function? It supplies blood to the heart muscles. Blockage in any coronary artery or its branches result in deadening of corresponding area of heart muscles, leading to heart attack. Or in common language, this is also known as myocardial infarction. Next diagram is internal structure of the human heart and associated blood vessels. So first of all, I am starting with superior vena cava. It brings deoxygenated blood from interior parts like head, chest and arm, ऊपर वाले parts जो हैं. Next is pulmonary artery. Pulmonary artery arises from right ventricle and carries deoxygenated blood to lungs for oxygenation. Pulmonary means anything which is associated with lungs. Aorta arises from left ventricle and carry oxygenated blood to supply to all parts of the body. Next is inferior vena cava, which brings blood from posterior or lower region of the body, including abdomen and legs. Next is tricuspid valve, which is right atrioventricular valve. Right atrioventricular means auricle और ventricle के बीच में, right side में, located between the right auricle and ventricle, has three thin triangular leaf-like flaps.
आपको पता है कि हम ट्राइकस्पिड को राइट हैंड साइड में दिखाते हैं। 32 के नंबर से हम इसको याद कर सकते हैं कि राइट वाले में 3 है और इधर वाले में 2, जिसको हम मिट्रल बोलेंगे। तो अभी 3 फ्लैप्स वाला थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। नेक्स्ट इज कॉर्डेटेंडिने, द एपाइसिस ऑफ द ट्रायंगुलर फ्लैप्स, जो इसी के एपाइसिस हैं, हेल्ड इन पोजीशन बाय tendinous cords arising from muscular projections of the ventricle walls. Next is papillary muscles. Muscular projection of the ventricle wall are known as papillary muscles. Next is septum. Septum help in preventing the mixing of oxygen-rich blood from lungs from oxygen-poor blood or deoxygenated blood from body through vena cava. Next is pulmonary vein, from lungs to the left auricle of the heart and carry oxygenated blood from lungs to left auricle. Next is pulmonary semilunar valve, at the base of the pulmonary artery opening from right ventricle and prevent the backflow of deoxygenated blood from pulmonary artery to right ventricle. So this is the functions of all the labeled parts of human heart. Now coming to next diagram, which is arterial systole and ventricular systole. So first one जिसमें आप देखेंगे कि बेस थोड़ा ब्रॉड है, तो इट मीन्स इसमें ऊपर यानी कि एट्रियल सिस्टॉल हो रहा है, और राइट हैंड साइड बी में आप देख रहे हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो रहा है, क्योंकि नीचे का पार्ट यानी वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में है। तो फर्स्ट पार्ट में ए डायग्राम में एट्रियल सिस्टॉल हो रहा है, इट मींस एट्रियल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब ऊपर का चैम्बर एट्रिया चैम्बर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओपनिंग ऑफ वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन क्लोज हो जाएंगे, पल्मोनरी वेन और वेना कावा की ओपनिंग बंद हो जाएगी। तो ब्लड एंटर वेंट्रिकल्स बाय क्रॉसिंग थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो जो बीच के दोनों वॉल्व अभी हमने पढ़े हैं वहां से ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा। सेमिल्यूनर वॉल्व एट द रूट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑटा, जो बाद में है सेमिल्यूनर वॉल्व, वो इस समय क्लोज हो जाएंगे, प्रोड्यूसिंग द साउंड डब टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू द वेंट्रिकल्स। यानी एट्रियल सिस्टॉल के समय जो हमें आवाज आती है वो डब की साउंड होती है। सेकेंड डायग्राम बी डायग्राम इज रिलेटेड विद वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, इट मींस इसमें वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी बीच वाले वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे विद जर्क प्रोड्यूसिंग द साउंड लब। तो इसमें हमें लब साउंड आ रही है जब वेंट्रिकल सिस्टॉल हो रहा है, और जब एट्रियल सिस्टॉल हो रहा है तो हमें डब साउंड आ रही है। ब्लड पासेस इनटू ऑटा एंड पल्मोनरी आर्टरी थ्रू सेमिल्यूनर वॉल्व, नीचे वाले वॉल्व के द्वारा ब्लड जो है वो आगे चला जाएगा। एट्रिया ड्रॉ इन ब्लड टू द ओपनिंग ऑफ वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। और हमने अभी पढ़ा था कोऑर्डिनेट टेंडिने hold the valves in position preventing their upturning due to pressure exerted by the contracting ventricles। जैसे आप पैराशूट में देखते हो एक बार खुल जाता है तो वो किस तरह से पूरा टाइट पोजीशन में आ जाता है, वैसा ही इसके अंदर हो जाता है, वो उसको बैक में नहीं जाने देगा। So our next diagram is difference between artery and vein। तो आर्टरी और वेन में आपको 4 लेबल्स मेन करने हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर आ रही है एक्सटर्नल लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद मिडल लेयर आ जाएगी, मिडल लेयर स्मूथ मसल है, इलास्टिक फाइबर्स है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका मीडिया। नेक्स्ट इज एंडोथेलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना, अंदर की तरफ आप देख रहे हैं। और सबसे अंदर का जो पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा ल्यूमन। तो अब आपको सबको पता है कि ल्यूमन वाइड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये वेन की कैरेक्टरिस्टिक है, और ल्यूमन अगर नैरो होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये आर्टरी की कैरेक्टरिस्टिक है। और इसमें हमें मेन इन्हीं चीजों पे फोकस करना है लेबलिंग में कि ल्यूमन किस में वाइड है, ल्यूमन किस में नैरो है। थिन मस्कुलर वॉल्स हैं, अगर थिन मस्कुलर वॉल्स हैं तो वो वेन है, और अगर थिक मस्कुलर वॉल्स है तो वो आर्टरी है। इसके अलावा नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए ये हमें क्या दिखा रहा है, वॉल्व दिखा रहा है जो वेन में है, वी फॉर वेन, वी फॉर वॉल्व। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते हैं, वेन में ही वॉल्व होते हैं टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ट। आप एरोज देख सकते हो कि वो वापस नहीं जाने देता है। इट मींस ये थिन पॉकेट शेप्ड वॉल्व जो हैं whose openings face in the direction of heart and these valve prevent the back flow of blood, उसको पीछे नहीं जाने देगा, यही इसका मेजर काम है। नेक्स्ट डायग्राम इज रिलेटेड विद आवर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, मींस जो 2 ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में आते हैं
वन इज पल्मोनरी एंड नेक्स्ट इज सिस्टेमिक। जो पहला पल्मोनरी है वो हमारा शॉर्ट साइकिल है और दूसरा हमारा जनरल साइकिल है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन अभी बोला था जो लंग्स के साथ जुड़ा है, pertaining to lungs. It starts in the pulmonary artery arising from the right ventricle which soon divide into two branches जो दोनों रिस्पेक्टिव लंग्स में चले जाएंगे। पल्मोनरी वेन कलेक्ट करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से और अब उसको वापस देके जाएगी हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल ऊपर वाले चैम्बर में देके जाएगी। तो ये साफ ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और दूसरा साइकिल जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है pertains to the major circulation in the body. It start with the aorta that arises from the right ventricle. अभी जो साफ ब्लड हमने इधर लेफ्ट ऑरिकल को दिया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करेगी। आर्टा आर्चेस बैक एंड कंटिन्यूज बिहाइंड एज द डॉर्सल ऑर्टा बन के भी जाएगी। आई होप आपको इस चैप्टर के डायग्राम समझ में आ गए होंगे। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर। Now next diagram is related with our next chapter which is excretory system, and this diagram you know is human urinary system. So first is adrenal gland. Adrenal gland is the endocrine gland which prepares the body to meet any emergency situation. Next is posterior vena cava which brings deoxygenated blood from lower part of the body towards heart. Next is renal artery and vein. Renal means anything which is associated with kidney. So artery and vein you already know. Now next is ureter. Ureter arises from hilum and carry urine from kidney and collects in the urinary bladder. Next is urinary bladder. In the lower part of the abdomen which collects the urine is known as urinary bladder. Next is sphincter. Circular muscles guards that opening of the bladder into urethra. These are circular muscle guards the opening of the bladder into urethra and relax at the time of urination under the impulse from the nervous system. Last is urethra. Urethra, the urine is intermittently emptied from urinary bladder to outside of the body through urethra. So these are the functions of these simple labeled parts in this diagram. Now coming to next important diagram which is of longitudinal section of kidney. First of all, outer dark cortex. Outer dark cortex is because of Bowman's capsule and PCT and DCT of nephron lie in this region giving it a dotted appearance. हमें क्वेश्चन आता है कि कॉर्टेक्स डॉटेड क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर नेफ्रॉन का जो हमने पार्ट पढ़ा है बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी सभी इसी के अंदर लाए करते हैं, उसी की वजह से कॉर्टेक्स की डॉटेड अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट इज इनर लाइटर मेड्यूला। किससे बना है? कंपोज्ड ऑफ फाइनली स्ट्राइप्ड सब्सटेंस अरेंज्ड इन सेवरल कॉनिकल पिरामिड्स। और ये स्ट्राइप्स किसकी आती हैं इसके अंदर? इसमें लाया करता है लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले भी हमारा नीचे आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट भी नीचे आ रही है। ये दोनों पार्ट हमारे लाए करते हैं लाइटर कलर मेडुला के अंदर, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस स्ट्राइप्ड दिखाई देती है, स्ट्राइप्स दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज पेपिला। द एपेक्स ऑफ ईच pyramid is called papilla which projects into the pelvis of the kidney. Renal column. Portions of cortical tissue extend in between adjacent renal pyramids. Next is hilum. Hilum is notch in the median surface of kidney from where ureter arises. Next is pelvis. Pelvis means cup shaped. The front end of the ureter is somewhat expanded into the kidney. This is known as pelvis. Last is ureter. It carries urine to the urinary bladder. So these are the main functions of the associated part of this diagram. Now this very important diagram is of the structural and functional unit of kidney. It means nephron. So starting with renal artery, it brings blood and gives to afferent arteriole, which you can see is wide, very wide, and it breaks into a number of capillaries. It breaks, it means छोटा छोटा होता जाएगा. Afferent arteriole breaks into a number of capillaries which form a knot-like mass. Knot-like mass is known as glomerulus. Now next is Bowman's capsule. Bowman's capsule is the thin-walled cup like a hollow ball जो एक तरफ से प्रेस हुई है
whose hollow internal space continues into the tubule. It receives glomerular filtrate. इसका मेन काम क्या हो जाएगा, ये glomerular filtrate को रिसीव करता है अगर फंक्शन पूछा जाएगा तो. Third is glomerulus. Glomerulus is the outer concavity of the Bowman's capsule, lodged in knot-like mass of blood capillaries, and its main function is ultrafiltration. इसका मेन काम है ultrafiltration. It means under hydrostatic pressure, it carries the liquid part of the blood to filter out from glomerulus to the renal tubule. Next is Malpighian capsule. जो आपका इसका adjacent diagram आप देख रहे हैं, ये है Malpighian capsule का, जिसमें Bowman's capsule and glomerulus together बनाते हैं इसको, इसीलिए इसको हम renal capsule या फिर Malpighian capsule के नाम से भी जानते हैं. बट इसमें आपको दोनों को दिखाना है, efferent arteriole आ रही है, efferent arteriole जा रही है, पूरा डायग्राम अच्छे से शो करेंगे. फिफ्थ इज efferent arteriole. हम वापस नेफ्रॉन पे आ रहे हैं. efferent arteriole, the reuniting capillaries of glomerulus form the efferent arteriole. और efferent arteriole हमारा थोड़ी दूर तक ऐसे ही जाएगा. सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, आप इसमें नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनरिक वहां देख रहे हैं, कैपिलरी नेटवर्क. तो efferent arteriole आफ्टर emerging from Bowman's capsule से जब निकलता है, runs a short distance and breaks up into secondary capillary network. Next is renal vein. It leaves the kidney at the median surface and pour the blood into the posterior vena cava. तो ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के फंक्शन और इनकी लोकेशन आ रही है. नेक्स्ट इज PCT, which is proximal convoluted tubule. It is nearer to the Bowman's capsule और इसका फंक्शन क्या है? It reabsorb almost 2/3 part of the water and much of glucose and sodium and chloride ions are absorbed by it. तो reabsorption का फंक्शन इसका मेन है. Next is middle, which is U-shaped part, loop of Henle. It runs in medulla to turn back and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region, which is DCT. और इसका काम क्या है? Absorption of water and sodium ions. Next is DCT. It means distal, means farther. In cortex, its location is in cortex and it is the end part of the kidney tubule and opens into collecting duct. Reabsorption of remaining chlorides and some waters इसने लेना है. इट मीन इसके फंक्शन में रीएब्जॉर्प्शन भी आएगा, लेकिन इसके अलावा इसका एक और मेजर फंक्शन है ट्यूबुलर सेक्रीशन. ट्यूबुलर सेक्रीशन मींस walls secrete potassium and foreign chemicals such as penicillin and other drugs into forming urine. और लास्ट पार्ट आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट. इट रिसीव्स द कंटेंट्स ऑफ मेनी किडनी ट्यूब्यूल्स एंड pours it as urine in the pelvis. तो इसके साथ हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम पूरा हो जाता है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ स्टार्टिंग विद नर्वस सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ आवर नर्व सेल. तो नर्व सेल का डायग्राम आपको पेपर में ड्रॉ करने के लिए आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और पेपर में आपको 2 या 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी सिंपल वाले आ सकते हैं. तो इसका आपको रिटन प्रैक्टिस भी करना है, ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल बॉडी. सेल बॉडी को हम पेरिकायरॉन या साइटोन भी कहते हैं. तो साइटोन में क्या है? सराउंडेड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और सराउंडेड बाय ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म के द्वारा सराउंडेड भी है. इसके अलावा इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, क्योंकि नर्व सेल्स की एबिलिटी डिवाइड करने की खत्म हो जाती है. नर्व सेल्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, इसीलिए इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट ही रहता है. नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स. Dendrites conduct nerve impulse to the cyton. Next is axon, surrounded by white insulating sheath, जिसको हम myelin कहते हैं, which is covered by outermost thin sheath called neurolemma. तो लेबलिंग में आपको ये वर्ड स्पेलिंग के साथ बिल्कुल करेक्टली लिखने हैं. Next is nod of Ranvier. These are the gaps throughout the length are called nodes of Ranvier. नेक्स्ट इज बल्ब इन द एंड पोर्शन. लास्ट में कई डायग्राम्स में बल्ब टाइप दिखाया जाता है. स्टोर केमिकल, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. और इसके अलावा जो गैप्स इन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, डेंड्राइट्स में आ रहे हैं ऑफ अनदर न्यूरॉन, जिनको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. तो एक एक्सॉन का टर्मिनल और दूसरे की जो डेंड्राइट्स है उनके बीच का जो गैप है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट डायग्राम, जिसमें हम टाइप ऑफ न्यूरॉन के बारे में देख रहे हैं. बहुत सिंपल सा है, ये वैसे आपको आता ही होगा. फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन.
अब सेंसरी न्यूरॉन आपको पता है विच कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन से मेन नर्वस सिस्टम तक जाती है, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, सेंसरी से आती है। तो सेंसरी न्यूरॉन डेंड्राइट्स फ्रॉम रिसेप्टर से आगे लेके जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन एरो पॉइंट कर रहा है, सेल बॉडी दिखाई है, एक्सॉन दिखाई है, इसी का ही नर्व सेल का ही पार्ट दिखाया गया है। और नेक्स्ट फिर दूसरा जो आ जाएगा आपके पास एसोसिएशन न्यूरॉन, उसका सेल बॉडी दिखाया गया। तो एक की डेंड्राइट और दूसरे की सेल बॉडी को हमने दिखाना है। तो इधर एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो क्या करती है, लोकेटेड कहाँ होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है और इंटरकनेक्ट करती है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ बीच में एक एसोसिएशन न्यूरॉन को दिखाना जरूरी है। उसके बाद हमारा सिनेप्स यानी जो उनका पॉइंट है वो जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो वाला आ जाएगा। फिर सेल बॉडी दूसरी आ गई, वो मोटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन क्या करती है, कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द मेन नर्वस सिस्टम टू एन इफेक्टर। इफेक्टर मीन्स कौन काम करेगा, यानी हमारी मसल या ग्लैंड उसको मैसेज देगी। तो मसल या ग्लैंड उसके हिसाब से जो सेक्रीट करना है, जो मूवमेंट करनी है, वो उस समय के लिए करेंगे, तभी वो वाला काम हमारा हो पाएगा। अब इसके बाद हम एक सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, जो कि नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम हम इसी को मानते हैं, आ रहा है, जिसमें हम इसके सारे पार्ट, लेबल्ड पार्ट्स का फंक्शन, लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास 3 लेयर्स आती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग्स या मेनिंजेस। तो ड्यूरामेटर हमारा आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद आर्गेनॉइड हमारा थिन डेलिकेट मिडल लेयर आता है जो कि वेब लाइक कुशन के जैसा होता है। तीसरा इस पायामेटर हमारा इनर मोस्ट हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन आता है जहां तक हमारा ब्लड आता है, मीन्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड, तो वो हमारा पायामेटर होता है। ये तीनों हमारी मेनिंजेस आ जाएंगी, यानी कि ब्रेन की सारी कवरिंग्स हैं ये। तो ये हम इसका सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, तो हमें ये सारे पार्ट्स दिखाने नहीं, ये बेसिकली आपको ड्रॉन आएगा, आपको लेबल्ड पार्ट के फंक्शन बताने होंगे, या प्रॉपर लोकेशन या उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड फंक्शन बताना होगा आपने। तो अब फर्स्ट आ रहा है आउटर पोर्शन, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आउटर पोर्शन जो कॉर्टेक्स है उसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज लाई करती हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी वाला पार्ट इसमें है, जिसकी वजह से इसका ग्रे अपीयरेंस है। तो आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स इससे बना है। नेक्स्ट इज इनर पोर्शन, जिसको हम मेडुला कहते हैं। मेडुला इज व्हाइट मैटर, कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। व्हाइट मैटर में हमारी एक्सॉन्स आ जाएंगी न्यूरॉन्स की। इसके अलावा जो फोल्ड्स हैं उनको हम गायरी कह रहे हैं, जो ग्रूव्स हैं उनको हम सल्सी कह रहे हैं। इन दोनों का ही पर्पस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एकोमोडेट मोर नर्व सेल्स। जितने ज्यादा नर्व सेल्स होंगे हमारी सीट ऑफ इंटेलिजेंस यानी हमारा ब्रेन उतना ही अच्छा पावरफुल इंटेलिजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट इज कॉर्पस कैलोसम। इट इज ए शीट ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इसका फंक्शन क्या है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ना, मींस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज स्कल। इट प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन, यानी कि ब्रेन स्कल के अंदर ही हमारा प्रोटेक्टेड रहता है, जिसमें ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम, ये सब स्कल के ही पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। तो ये हमारा तीनों पार्ट हम यहीं पे लिखेंगे। इसके अलावा हमारे सारे वोलेंट्री फंक्शंस जो हम जानबूझ के करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, उन सबको कंट्रोल हमारा सेरिब्रम ही करता है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। Hypothalamus control the body temperature and then pituitary gland also. Now next is pituitary gland क्या है, hangs from the base of the midbrain के वहां से hang करता है। It seems to control practically all other endocrine glands. सारी endocrine glands को ऑर्डर देने का काम यही करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बट अब ये टर्म हम इसके लिए ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉन्स। तो पॉन्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन below the cerebellum or carries impulses from one hemisphere of the cerebellum to the other hemisphere and coordinate muscular movement on both the sides of the body. दोनों तरफ के बॉडी के पार्ट्स को मसल कोऑर्डिनेशन करवाने का काम इसी का होता है। तो इसके साथ हमारा कोई पार्ट इसमें रहा तो नहीं है। पिनियल ग्लैंड हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी सबके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। थैलेमस का रह गया। थैलेमस में हमारे पास रिलेज पेन एंड प्रेशर, पेन और प्रेशर को रिले करता है, इम्पल्सिस सेरिब्रम को बताता है। तो रिले पेन एंड प्रेशर इम्पल्सिस टू सेरिब्रम।
ये थैलेमस का फंक्शन है। हाइपोथैलेमस का अभी हमने करा, कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड देन पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एक और पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हम यहाँ भी कवर कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के मेन फंक्शंस में क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक। नेक से नीचे वाली रिफ्लेक्सेस इसी ने कंट्रोल करनी है। कंडक्ट सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन एंड देन कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड देन लिम्स ऑल्सो। तो ये सारे हमारे तीनों स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस हैं जो बहुत कॉमनली पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो हमने अच्छे से करना है। नाउ नेक्स्ट डायग्राम हमारा स्पाइनल कॉर्ड का आ रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड के केस में हमें 2-3 तरह से डायग्राम आ सकता है, हालांकि लेबलिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, आप देख ही रहे हैं, लेबलिंग में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर आएगा। रिसेप्टर जो है वो स्किन के अंदर है, तो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं which on receiving the stimulus set up wave of impulses towards central nervous system, लेके जाएंगे रिसेप्टर, लेके जाएंगे इम्पल्सिस को सीएनएस के पास। फिर हमारे पास आएगा सेंसरी न्यूरॉन विच रिसीव द स्टिमुलस और इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर, उससे ले रहा है, सेंसरी न्यूरॉन ले रहा है, रिसीव कर रहा है इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। गैंग्लियन आ जाएगा बीच में। गैंग्लियन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट्स ऑफ नर्व सेल्स फ्रॉम विच नर्व फाइबर्स मे अराइज और एंटर इनटू, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपको डॉर्सल गैंग्लियन दिया गया है या वेंट्रल। तो डॉर्सल का मीन्स आपका बैक हो जाएगा और वेंट्रल का मतलब एंटीरियर फ्रंट आ जाएगा, तो आपको उस हिसाब से लाइन यही रहेगी, मे अराइज और एंटर इनटू। फिर स्पाइनल कॉर्ड के तीनों फंक्शन जो मैंने अभी आपके सामने रिपीट किए थे, और इसकी लोकेशन आ जाएगी, इट इज इन द न्यूरल कैनल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम which is concerned with all the 3 functions जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी इंपल्सिस फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन, और इफेक्टर ऑर्गन हमारे पास कौन होता है? मसल या फिर ग्लैंड होती है। नेक्स्ट इसका व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर थोड़ा ध्यान से करना है। इसमें व्हाइट मैटर आउटर साइड में है, आउटर साइड में कंटेन एक्सॉन्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, तो इसके व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं। और ग्रे मैटर में ऑन द इनर साइड दिखाई दे रहा है आपको, कंटेनिंग सेल बॉडीज ऑफ मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। पेपर में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की अरेंजमेंट चाहे तो ब्रेन की चाहे तो स्पाइनल कॉर्ड की एक जरूर कवर होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल कैनल। बीच में आपको छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। इन द सेंटर विच रन्स द एंटायर लेंथ एंड इज कॉन्टिन्यूज विद द कैविटीज ऑफ द ब्रेन, तो इसको हम सेंट्रल कैनल कह देते हैं। ये पूरी लेंथ में हमारे साथ ही चलता है, तभी इसी के आसपास हमारा काम अच्छे से हो पाता है। तो आई थिंक इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर हो गए हैं। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट चैप्टर आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय फॉर नाउ।